In from Jammu and Kashmir, the Gupkar Alliance has decided together to go ahead with the meeting where the Prime Minister is concerned. Yes, that's the latest which is coming in. The meeting is scheduled for Thursday and the Gupkar Alliance has decided to go ahead with it. The decision was taken at the meeting of all 6 political parties of the alliance, which was held at the residence of NC Chief and Alliance Chairman Farooq Abdullah. Addressing the meeting after Abdullah said that the alliance leaders will meet the Prime Minister and put forward their stand before the central government, clarifying that no agenda has been set by the centre for talks. Gupkar Alliance also asserted that restoration of Article 370 that accorded special status to Jammu and Kashmir is a must. कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें। We are not against, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है, पर हम ये ज़रूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था, जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे डेटेनीज हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था। अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं। दूसरा हमारा ये ख्याल था कि अगर PAGD के हेड के तौर पे फारूक साहब जाएंगे, मगर इनका ये है कि नहीं, हमको इंडिविजुअली इनवाइट किया गया है, सबको अलग अलग जाना चाहिए। पीपल्स अलायंस का जो एजेंडा है, जिसके लिए हमने ये अलायंस बनाया हुआ है, जो हमसे छीना गया है, हम उस पर बात करेंगे कि ये आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात और इस पूरे खित्ते में आप अमन बहाल नहीं कर सकते। Sir, what was discussed in the meeting? What has been decided by the Gupkar Alliance? It has been decided that the Gupkar Alliance, all the members, they will be going for this meeting, and there is an apprehension that there is a structured dialogue going to be there. There is nothing like that. It is an open meeting. The PAGD, all the constituents of PAGD, and the people of Jammu, Kashmir and Ladakh, they stand by that declaration that restoration of 370 and 35A is a must. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मीटिंग बुलाई, हमें दावत मिली, यही फैसला हुआ कि हम उस मीटिंग में शिरकत कर लेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात को सुनेंगे और जो हमारी तजावीज़ है, हमारा एजेंडा है, उनके सामने रख लेंगे। और आपने साफ कहा कि जो गुपकार अलायंस बना है वो बना था 370 बहाली के लिए बना है, और आपका वो स्टैंड उस बैठक में जो प्रधानमंत्री की तरफ से 2 साल बनाई वो जारी रहेगा। तो क्या आप एक बार फिर मांग करेंगे? नहीं, लाजमी तौर पर हम मांग कर लेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें दिया है, अगर वो वापस लिया गया, उसका कोई हिस्सा, कोई हक ज़रूर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मांगेंगे कि हमें वो सब कुछ वापस मिलना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें दिया है या दिया था। All right, let's come all the way down to Delhi and let's talk about a leader from Maharashtra, NCP, Sharad Pawar, who's now proving to be the fulcrum on which is banding the opposition leaders. As we speak, there is a meeting which is at play. The Nationalist Congress Party chief, Sharad Pawar, is chairing a meeting of prominent opposition leaders at his residence. Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh, NC's Omar Abdullah, TMC's leader Yashwant Sinha, Majid Beman and RLD's Jayant Chaudhary were amongst others at Pawar's residence. The meeting is over as we speak. The latest is that the talks focused on economic and the current political situation in the country. Sources told India Today that left leader D. Raja and Sitaram Yechuri skipped the meeting due to lack of clarity on its agenda. The meeting assumes significance ahead of 2024, with Congress failing to pose a strong alternative to the Modi-Shah juggernaut. If common man is aggrieved by the current central dispensation, we will be failing our duties if we don't do anything. And in Punjab, viewers, the Congress versus Congress saga continues. Sidhu versus Amrinder. And now, of course, the entire theatrics are playing out in the national capital.
साथ आएगा और मिलेगा और जिससे जरूर भी समय होएगी आई विल। Title defender Captain Amrinder Singh, Congress heavyweight and powerful Chief Minister of Punjab. Title challenger Navjot Singh Sidhu, cricketer and celebrity Congress Neta, now on the warpath against his new nemesis. अपनी लड़ाई निजी नहीं है। Together, this collision is the biggest political tucker of 2021. A potboiler for the ages. An epic super clash between the Sardars, just months before Punjab goes to polls. The festering feud is playing out with frenetic suspense. Captain Amrinder Singh was in Delhi on Tuesday once again, forced to subject himself to the Congress High Command's Crisis Committee for the second time. India Today can confirm that the captain is furious, deeply unhappy with Sidhu's increasingly explicit and belligerent statements against him. Things have rotted to such an extent that Amrinder is said to have presented a dossier against Sidhu to the committee. And despite a whisper campaign, Amrinder is said to be firm that he doesn't want Sidhu to be placated with any post, neither of Congress state chief nor his deputy. The meeting assumes significance in view of Navjot Singh Sidhu's most direct attack on Amrinder Singh, accusing him of thwarting his every bid to reform the system when he was a cabinet minister. सिस्टम ने एक फटीला था मेरे ऑफिस के बाहर, मिनिस्टर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर। मैं कहता सिस्टम, आई सेड नो, मैं कहता सिस्टम व्हिच हैज रिजेक्टेड ऑल माय प्रपोजल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब, आई विल रिजेक्ट दैट सिस्टम। आई सेड नो। Ahead of his Delhi visit, Captain met with Congress Rajya Sabha MP Pratap Singh Bajwa, a strong critic of the state government, a meeting that triggered speculation that Sidhu would be placated going forward. But 48 hours is clearly an eternity in this ferocious drama, with neither Captain nor Sidhu willing to step away from this fight. There are now only 3 questions. Can both sides be pacified in this high-stakes battle? If not, then who will prevail over whom? And most importantly, will the losing contender stay quiet? Bureau Report, India Today. All right, viewers, as promised, let's get you that CDS exclusive by my colleague Manjeet Negi. आने वाले दिनों में युद्ध के मोर्चे पर तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एक बड़े कदम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं थिएटर कमांड्स की। जनरल साहब का स्वागत है आज तक पर, और मैं जानना चाहूंगा कि जो एक ऐतिहासिक कदम इसको माना जाएगा, थिएटर कमांड्स भारतीय तीनों सेनाओं को लेकर बनाए जाने, किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं? जब से सीडीएस की नियुक्ति की गई है, उसी नियुक्ति के आदेश अनुसार हमारे को बताया गया है कि हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, सबको एकजुट होकर काम करना है। और हमें अपनी जो युद्ध की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि तीनों सेनाओं में जॉइंटनेस लाई जाए, हम एकत्रित होके हमारी जो शक्तियां हैं उनको कायम रखें और किस तरह से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। इसके लिए अनिवार्य है कि हम लोग थिएटर कमांड बना के आगे की कार्रवाई करते रहें। इस प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी से कार्रवाई चल रही है। तीनों सेनाओं में सहमति हो गई है कि हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना है। काफ़ी सलाह मशवरा करके हम लोग ने
किस तरह की प्रक्रिया हमारी होगी, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर हमारे होंगे, इस पर काफ़ी हद तक कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, कभी भी जब कोई बदलाव लाया जाता है तो उसमें कुछ कभी कभी रुकावट आती हैं, लेकिन ये रुकावट भी ज़रूरी होती है, क्योंकि इन रुकावट के ज़रिए या जो बाधाएं बीच में आती हैं, इनसे हमें महसूस होता है कि शायद इसमें और विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, और इसी तरह कुछ और विचार विमर्श करके हम लोग आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि सब प्रक्रिया, जितनी भी हमारी प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, सब समय सारिणी के अनुसार चल रही है। क्या खाका होगा, अगर आप बता पाएं कितने कमांड होंगे और क्या फायदा इसको सेनाओं को मिलेगा और देश को क्या फायदा इससे होगा? देखिए, आप जानते हैं कि ज़मीन की सतह के ऊपर एयर स्पेस होता है। आजकल मैनेजमेंट ऑफ एयर स्पेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्योंकि हमारी जो एयर स्पेस है उस पर न केवल हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर ऑपरेट करते हैं, इसमें आजकल ड्रोन्स भी आ गए हैं। इसमें आर्टिलरी की तोप द्वारा जो हमारे गोला फायर होता है, ये भी अभी इतना पावरफुल, इतना लॉन्ग रेंज वाला हो गया है कि जब ये अपनी दिशा में जाता है तो ये काफ़ी ऊंचाई पर गोला जाता है हवा में। इतना मिसाइल्स आ गई हैं जो भी काफ़ी ऊंचाई पर कार्रवाई करती हैं। तो ये सब जो है, इन सब को कोऑर्डिनेट करने के लिए, ताकि हम आपस में एक दूसरे का नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा, अगर हमारे एयर स्पेस में अगर कोई हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो उसमें ड्रोन बाधा ना डाले, या उसमें हमारी जो आर्टिलरी है उससे कोई बाधा ना हो, या आर्टिलरी के फायर में, क्योंकि उसमें एयरफोर्स ऑपरेट कर रही है तो उसके फायर में बाधा ना हो। तो इस सबको कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत होती है। तो इसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए हम लोग एक एयर डिफेंस कमांड बनाने जा रहे हैं। इसी तरह हमारी जो समुद्री सीमाएं हैं ये काफ़ी बड़ी हैं, इसमें हमारी कुछ आइलैंड टेरिटरीज भी हैं। तो इन सब पर कंट्रोल करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना एक मैरीटाइम कमांड बनाई जाए। और इसी तरह हमारे पास पश्चिमी और उत्तरी छोर में हमारे पास जो सीमाएं हैं, ये कुछ हद तक सीमाएं अनसेटल्ड हैं पाकिस्तान के साथ। जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं अभी तक बॉर्डर पूरी तरह डिमार्केट नहीं हुआ है, जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और चीन के साथ हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहाँ पे भी हमारी सीमाओं पर अभी विवाद चल रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, अपने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, हम एकजुट होकर लैंड बेस्ड कमांड बनाएं, एक पश्चिमी छोर के लिए और एक पूर्वी छोर के लिए। तो इस तरह से हमारी कार्रवाई चल रही है कि हमारी लैंड बेस्ड कमांड होंगी, हमारी एयर डिफेंस कमांड होगी और हमारी मैरीटाइम कमांड बनेगी। अभी सर, जिस तरह के हालात हम सरहद पर देख रहे हैं चीन और पाकिस्तान के खिलाफ, आपको लगता है कि उन चुनौतियों से निपटने के लिए, और वो चुनौतियां किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं, थिएटर कमांड का फायदा होगा? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगर हम एकजुट होकर कार्रवाई करते हैं और तीनों सेनाओं की शक्ति को हम अगर इस्तेमाल करें एकजुट होकर, तो हम काफ़ी हद तक, जैसे कि कहा गया है, 1+1+1 को 3 ना करते हुए 1+1+1 को 111 बना सकते हैं। दुनिया की जितनी भी सेनाएं हैं, जो बड़ी सेनाएं हैं, उन्होंने सब ने इंटीग्रेशन कर लिया। चाहे आप देखिए अमेरिका को देखिए, आप फ्रांस को देखिए, आप यूके को देखिए, आप हमारे प्रतिद्वंदी चीन को देखिए, इन सब ने इंटीग्रेट करके कार्रवाई कर रहे हैं। और ये इंटीग्रेशन इसलिए किया जा रहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं का जब एकजुट मिलकर जब ये कार्रवाई करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा शक्ति प्रदान होगी। हम ज़्यादा सही तरीके से अपने जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन पावर रिसोर्सेज हों, इक्विपमेंट रिसोर्सेज हों या वेपन्स हों, उनको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये इंटीग्रेशन होगा तो हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। कोई समय सीमा इसको लेकर रखी गई है, कब तक ये लागू होगा? ऐसा भी कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के आसपास प्रधानमंत्री इसको लेकर भी घोषणा कर सकते हैं। देखिए, हमारी कोशिश तो है कि हम समय सीमा में काम करें, और हम समय सीमा हमारे को असल में कैबिनेट नोट द्वारा भी दी गई है कि 3 साल के अंदर हो सके तो ये इंटीग्रेशन करना है पूरा।
तो हम उसी को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ से बैकवर्ड टाइम कैलकुलेट करते हुए सारी कार्रवाई कर रहे हैं। तो थिएटर कमांड के अलावा हमारे सामने जो और चुनौतियां उनकी बात करते हैं, कश्मीर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सेना के साथ शीज फायर को लेकर, संघर्ष विराम को लेकर एक समझौता हुआ, उसको भी 4 महीने का वक्त हो गया है। आपको कोई बदलाव वहाँ पर नज़र आया है क्या? पाकिस्तानी सेना और बाकी जो आतंकी संगठन उनके रुख को देखते हुए वहाँ पर किस तरह के हालात को कैसे आप देखते हैं? इस वक्त जो सीज फायर हुआ है उसमें हालात में तो सुधार आए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इस पर उल्लेख किया है और उन्होंने कहा है कि कुछ हद तक इन्फिल्ट्रेशन में कमी आई है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि हथियार और असला ड्रोन के जरिए हमारे देश में भेजा जा रहा है, ये भी एक खतरा है। मतलब कि अगर इस तरह से असला और एमुनिशन और ड्रग्स अगर हमारे देश में आते रहेंगे तो हो सकता है कि हमारे अंदरूनी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश जारी है। तो सीज़ फायर में अगर सरहद पे सीज़ फायर हो रहा है तो हम तो ये चाहेंगे कि सरहद के साथ साथ हमारा जो हिंटरलैंड है, कश्मीर वैली है, वहाँ पे भी पूरी तरह से सीज़ फायर होना चाहिए और पाकिस्तान की ओर से कम कोई दखलंदाजी ना हो। अगर पाकिस्तान के तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं होगी तो हमारी फोर्सेज जो हैं वो काबिल हैं कि सिचुएशन को हम पूरी तरह से कंट्रोल में ला सकें। कश्मीर में जो धारा 370 को ख़त्म किया गया उसके बाद उसको भी काफ़ी अब वक्त हो गया है, वहाँ पर ऐसा अब कोशिश की जा रही है कि जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसकी तरफ आगे बढ़ा जाए। आपको लगता, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से इस वक्त बातचीत भी करनी चाहिए, तो आपको लगता है कि हालात उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हम पाकिस्तानी सेना पर भरोसा कर सकते हैं, उनसे बातचीत की टेबल पर उनके साथ बैठ सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान से बातचीत करने का जो सवाल है वो एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा। हमारे यहाँ जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, हम एक पॉलिटिकल लीडरशिप के नीचे काम करते हैं, इसलिए हम सिर्फ सुझाव दे सकते हैं अपनी लीडरशिप को, लेकिन जो फाइनल जो फैसला होता है वो पॉलिटिकल लीडरशिप करती है। इसलिए अगर पॉलिटिकल लीडरशिप सिर्फ सीज़ फायर के तौर से नहीं देखती है, वो इकोनॉमिक कंडीशंस, पाकिस्तान की अंदरूनी हालत, बाकी क्या कार्रवाई हो रही है, उसके बारे में जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उनको पूरी जानकारी होती है, क्योंकि उनको जो खबर आती है वो अन्य सोर्सेज से भी आती है। तो उस हिसाब को पूरा एक बार वो सलाह मशवरा करके उस पर विचार विमर्श करके फिर फैसला लेंगे। जो भी वो फैसला लेंगे मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ फैसला सही फैसला होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी पड़े इट विल बी अ पॉलिटिकल डिसीजन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर आपको लगता है कि पिछले 1 साल में या फिर समझौते के बाद पाकिस्तानी सेना के रुख में कोई सकारात्मक बदलाव आपको नज़र आ रहा है? कुछ तो बदलाव नज़र आ रहा है, लेकिन ये बदलाव किस प्रेशर की वजह से हमें इस पर विचार करना है। हमारी सेना ने सरहद के ऊपर काफ़ी गोलाबारी करी है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार इन्फिल्ट्रेशन करता रहा, उसके वजह से भी पाकिस्तान सेना के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ा है। उनके अपने पश्चिमी छोर पर इस वक्त काफ़ी कार्रवाई चल रही है। उनकी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन भी काफ़ी नाजुक है। तो अगर हम इन सब पहलू को देखें तो हो सकता है कि उन्होंने ये महसूस किया है कि इस वक्त भारत के साथ हमारे को समझौता कर लेना चाहिए। FATF का भी प्रेशर है उनके ऊपर इस वक्त। तो किस नज़रिए से वो सीज़ फायर कर रहे हैं हमारे तरफ, इसको हमें थोड़ा और विचार विमर्श करना होगा। हम तो यही चाहेंगे कि अगर सरहद पर पीस हो सकती है तो आगे की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इस पे अभी हमारे को और विचार विमर्श करना पड़ेगा। फेस वैल्यू पे हमें नहीं लेना चाहिए। जनरल साहब, सरहद पर हमारे सामने एक बड़ी चुनौती चीन की तरफ से होती है। लद्दाख में हमने पिछले 1 साल में जो हालात देखे, अब 1 साल के बाद आप अभी जो हालात हैं उनको कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले साल के हिसाब से इस साल के जो हालात हैं वो काफ़ी सुधरे हुए हैं, क्योंकि पिछले साल काफ़ी टेंशन थे। इस वक्त काफ़ी हद तक, क्योंकि बातचीत का जरिया जारी है, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, मिलिट्री लेवल पे हो, कोशिश यही की जा रही है कि सरहद पर पूरी तरह से पीस और ट्रैंक्विलिटी हो। और हमारी कोशिश तो यही है कि जो अप्रैल 2020 की जो पोजीशन थी उस पर दोनों सेनाएं उस पर कायम हो जाएं। 2020 की जो लाइंस हमने मेंटेन की थी उस पर लौट जाएं। मेरे ख्याल में अगर हम इस प्रक्रिया में सफल रहे तो शायद पूरी हद तक वहाँ पे पीस और ट्रैंक्विलिटी लाया जा सकता है।
जनरल साहब, पिछले एक साल में हमारी जो थल सेना है, वायु सेना है, उन्होंने जिस तरह की वहाँ पर तैयारी की चीन से मुकाबले को लेकर, सरहद पर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें और बाकी चीज़ों हथियारों की बात करें, आपको लगता है कि अब हमारी जो तैयारी इस वक्त है पूरी सरहद पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, क्या अब ऐसे हालात हो सकते हैं कि चीन दोबारा इस तरह की चौंकाने की स्थिति में होगा हमारे खिलाफ? इस वक्त हमारे जो तीनों सेनाओं के जो चीफ्स हैं, चाहे वो नेवी, आर्मी या एयरफोर्स के चीफ हैं, ये लगातार इस पर अपनी नज़र रखे हुए हैं। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारी सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं, और अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो हम उस पर जवाबी कार्रवाई देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक आखिरी सवाल जनरल साहब, अगर दोनों सरहद पर हम अपने चुनौती देखें तो कहाँ, किस सरहद पर आपको ज़्यादा बड़ी चुनौती नज़र आती है आज के हालात में? ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि सिचुएशन किस तरह से इवॉल्व होती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे को अपनी जो उत्तरी सीमाएं हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, लेकिन इसी के साथ साथ हमारी जो पश्चिमी सीमाएं हैं उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चीन के साथ जिस तरह से कार्रवाई करनी है, वो मिलिटरीली किस तरह से कार्रवाई होगी वो होगी, तो उस पर हमारी प्रिपरेशन है। किस तरह से चीन कार्रवाई करेगा उस पर भी हम नज़र रखे हुए हैं। लेकिन हमारी पश्चिमी छोर पे आतंकवादी हैं, आतंकवादी किस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, और उसके वजह से अगर एस्केलेशन हो सकता है कि कुछ आतंकवादी ऐसे हों जो कि पाकिस्तान मिलिट्री के कब्जे से बाहर कार्रवाई करें हमारे ऊपर, और उस वजह से अगर एस्केलेशन हो जाए, कोई ऐसा ऑपरेशन कर दे आतंकवादी जिससे कि फिर टेंशन बढ़े पश्चिमी छोर पे, तो इसलिए कहना कि किस तरफ हमारे को सतर्क करना है, मैं तो ये कहूँगा हमारे को दोनों छोर पे सतर्क रहने की ज़रूरत है। All right, viewers, with that, it's a wrap on this edition of 7 at 7. But do stay with us. On the other side, it's To The Point.